Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to APSEX online sport program. I am Binish Asif from Department of Biology, Girls Senior Wing, APSEC Fort Road, Rawalpindi. Today we have lecture number 4 of week 4. That is from chapter number 16, Sport and Locomotion, and page number of textbook is page number 55. This is the textbook page number 55 which we are going to discuss in today's lesson. The topic of today's lesson is injuries to joints. Injuries to joints. Now in this topic we will discuss that how joints become injured and what are the main causes which are responsible for the injury of joints, and what are different types of injuries that cause joints to become injured. So let's start with the causes. Torsion or sudden impact to the side of a joint can be devastating. What is the meaning of torsion? Torsion may be twisting, and sudden impact, it may be any forceful collision or any trauma or fall. So twisting, any trauma, fall, it may be strong collision which are responsible for the injuries, and these injuries are very harmful for the joints. So two main injuries which we will discuss in this topic are number 1, dislocation of joints, and number 2 is a sprain. So we will discuss these two types one by one. Let's start with dislocation of joints. As its name indicates that it is the movement of joints from its original place. When a joint move or when a bone move from its original place, then it makes the joint to be dislocated. So how we can define it? A dislocated joint is a joint that slips out of place. It occurs when the ends of bones are forced from their normal position. तो इसका मतलब ये है कि जब वो बोन्स अपनी नॉर्मल जगह पे, जहाँ पे वो जॉइंट पे हैं नॉर्मली, वहाँ से जब वो मूव करती हैं किसी भी ट्विस्टिंग, किसी भी फॉल की वजह से, तो उसमें फिर जॉइंट्स जो हैं वो डिसलोकेट हो जाएंगे, और जब वो मूव करते हैं अपनी ओरिजिनल प्लेस से तो उसको हम कहते हैं कि जॉइंट्स क्या है, इंजर्ड हो गए. और इस इंजरी की टाइप को क्या कहेंगे? डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स इन विच बोन्स मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस. सो दिस डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट इट मे बी हार्मफुल. कैसे ये हार्मफुल है? व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स? अ सेवियर डिसलोकेशन कैन कॉज टेयरिंग ऑफ मसल्स, लिगामेंट, टेंडन्स दैट सपोर्ट द जॉइंट. अब जॉइंट जब डिसलोकेट होगा तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने जो सराउंडिंग में मसल्स हैं, जो टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, इवन के नर्व्स भी, इन सब को उसने क्या करना है? रप्चर करना है. जब वो रप्चर होंगे तो जॉइंट डिसलोकेट होने के साथ साथ मूवमेंट भी उसमें पॉसिबल नहीं होगी. Symptoms of dislocation of joints. Now, what are the symptoms? Symptoms are number 1, swelling, number 2, intense pain, number 3, immobility of affected joint. अब ये तीनों symptoms क्यों होगी? क्योंकि हमने पीछे भी ये डिस्कस किया कि जब joint मिसप्लेस होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती हैं? दैट इज़ मसल, नर्व्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. ये भी रप्चर होंगे. जब ये रप्चर होते हैं तो उसकी वजह से स्वेलिंग भी होगी, उसमें पेन भी होगा और इमोबिलिटी भी होती है, और वो जॉइंट जो है वो मूव नहीं कर सकेगा. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ dislocation of joint. Now, what are the causes of dislocation of joints? These may be number 1, blow, number 2, fall, number 3, trauma to the joint, number 4, disease or defective ligament in some cases, and last is the rheumatoid arthritis. Now, how dislocation of joint is treated? It can be treated only by reduction, or it may be reduced. Now, here what is the meaning of reduce? It doesn't mean that any removal or decrease in size, but here the meaning of reduced or reduction is actually the restoration. अब restoration कैसी है कि जो joint जिसने move किया है अपनी जगह से, तो उसको दोबारा ये मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं वो दोबारा रिड्यूस करके या रिस्टोर करते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे. दैट इज़ द रिडक्शन. और सर्जरी में बी नीडेड टू रिपेयर टाइटन, स्ट्रेच लिगामेंट. अच्छा, इसमें रिड्यूस में एक चीज़ ये आपने सुना होगा कि प्लेट्स डालते हैं या स्क्रू, वो रिडक्शन में होगा. इसके अलावा सर्जरी भी होती है अगर जो टाइटन या स्ट्रेच लिगामेंट्स हैं उनके लिए या उनको रिपेयर करने के लिए. सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स. ऐसे कौन से जॉइंट्स हैं कि जिनमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो देयर आर 4 जॉइंट्स इन विच दीज चांसेस आर मोर.
ज़्यादातर जिनमें होंगे वो दो हैं, दैट इज़ शोल्डर एंड नी, और कम चांसेस जिनमें हैं वो हैं फिंगर्स एंड टोज, बट मोस्टली इट अकर्स इन द शोल्डर जॉइंट। नंबर 2 इज स्प्रेन। सो व्हाट इज स्प्रेन? स्प्रेन को उर्दू में हम लोग कहते हैं मोच आना। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सुना होगा आपने कि पाँव निकल गया या पाँव में मोच आ गई। वो जो मोच आना है दैट इज़ एक्चुअली द स्प्रेन। अब ये मोच किस वजह से आती है, उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं? स्प्रेन में एक्चुअली क्या होगा कि जो हमें नज़र आती हैं सामने, उसमें तो पाँव मोच के फ़ौरन बाद स्वेल हो जाता है और साथ पेन कॉज करता है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि लिगामेंट्स जो हैं वो एक्चुअली इंजर्ड होती हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन स्प्रेन? इट इज़ एक्चुअली एन इंजरी टू अ लिगामेंट। लिगामेंट में इंजरी होगी। अब लिगामेंट में जब इंजरी होती है तो उसमें फोर्स जो है इतनी स्ट्रांग होगी जिसकी वजह से वो जो ट्विस्टिंग है वो पाँव को अननेचुरल वे में जो है वो मूव करता है अननेचुरली, और जब वो अननेचुरली मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होते हैं, लिगामेंट इतने ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन से, या तो उनमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी और स्ट्रेचिंग की वजह से वो क्या है, रप्चर हो जाएंगे। तो ये नीचे डायग्राम में भी देखें कि इसमें स्प्रेन का दिखाया हुआ है कि पाँव के मुड़ने की वजह से उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं कि जो लिगामेंट हैं वो रप्चर हो जाएंगे। नाउ व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट्स? ये लिगामेंट्स किस किस एरिया में होंगे? नंबर 1 एंकल, नंबर 2 नी, एंड नंबर 3 इज रिस्ट। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्प्रेन? लिगामेंट्स कैन बी इंजर्ड बाय बीइंग स्ट्रेच्ड टू फॉर फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। अभी मैंने जो आपको बताया था कि वो ट्विस्टिंग जब होती है, ट्विस्टिंग इतनी फोर्सफुली होगी कि वो जो पाँव है वो मूव करता है अननेचुरल वे में अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर, और जब वो अननेचुरल वे में करेगा, मूव करेगा, तो उसकी वजह से लिगामेंट्स में स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाएगी। जब लिगामेंट में स्ट्रेचिंग होगी तो उसमें रप्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन. What is the treatment of sprain or how it can be treated? There are different ways for the treatment of sprain, which you can also see in the diagram. So the ways by which sprain can be treated are: number 1, by taking rest; number 2, icing. Icing means cold therapy. Number 3 is physical therapy. What is the meaning of physical therapy? That instead of using drugs, an injured area can be treated by using massage, by exercise, or by heat. And number 4 is dressing. Number 5 is bandages, and number 6 is S-straps. Now what are S-straps? These are stretchable bandages which can be used to produce a localized pressure. These should be used to immobilize a sprain and provide support. So these are the ways by which sprain can be treated, and you can also see the diagram which shows different methods of ankle sprain for their cure. First aid treatment of disorders of skeleton. In this topic, we will discuss the significance of first aid treatment, and if we found some suspect having dislocated joint or fractured bone, then how can we help? So significance of first aid treatment is prompt and proper first aid increases the chances of complete recovery. कि जितना immediate जो है वो first aid treatment दिया जाएगा उतना ही उसमें affected area के injury के chances जो हैं complete recovery के वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें भी वो depend करता है कि उस injury का cause क्या है। जितनी severe वो injury होगी तो उसमें फिर healing जो उसका जो time है heal करने का वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। Usually the severity of the bone fracture and the dislocation of joint depend on its cause and the affected area. So how can you help if you suspect someone has dislocated a joint or fractured bone? So these are the ways by which we can help if we found someone with dislocated joint or the fractured bone. We can help by number 1, immobilizing the fractured bone or dislocated joint, but don't attempt to manipulate. अब immobilizing का मतलब ये है कि उसको हमने move बिल्कुल नहीं करना, कि उसको खुद ही खींच के दाएं बाएं जो है तो वो कर रहे हों, तो उसको बिल्कुल ना करें, बल्कि वो किसने करना है, वो जो उसका प्रोफेशनल है, ट्रेनर है, उस तक हमने करना। मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो ही उसको ट्रीट कर सकेगा। खुद से अटेम्प्ट ना करें आप उसको रीअलाइन करने की। Next is, if possible, apply ice pack or cold pack over the affected part to reduce swelling.
कि कोल्ड थेरेपी जितनी हो उस पर करें ताकि उसकी स्वेलिंग जो है वो कम से कम हो सके। नेक्स्ट, असिस्ट द विक्टिम टू पोजीशन ऑफ कंफर्ट, जहाँ पे वो रिलैक्स हो वहाँ पे उस पोजीशन में थोड़ा उसको लिटा लें। नेक्स्ट, प्रोवाइड सपोर्ट टू द अफेक्टेड एरिया सच एज यूजिंग स्लिंग्स और स्प्लिंट्स, जो भी अफेक्टेड एरिया है उसके लिए स्ट्रेचेबल बैंड्स जो हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब ये देखें जो स्लिंग जो फर्स्ट डायग्राम में है कि जो हम अफेक्टेड एरिया को सपोर्ट करने के लिए ऐसे गले में ये इस तरह बांध देते हैं, अक्सर आपने देखा भी होगा, उनको कहते हैं स्लिंग। और स्प्लिंट क्या है, नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये हार्ड सा बैंड होता है जो अफेक्टेड एरिया के अराउंड बांधते हैं ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। Next, listen to what the victim tells you, and dislocations involve the hip, ankle and leg joints. These are and compound fractures require ambulance to transport the victim. क्योंकि ये वाले जो डिसलोकेशन या फ्रैक्चर है ये ज़्यादा पेनफुल होती है और इसमें एम्बुलेंस के बगैर ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। So that's end of today's lesson. Let's have a recap of topic. So what we have discussed in today's lesson, that is injuries to joints, dislocation of joints, sprain, and first aid treatment of disorders of skeleton. You have to learn question number 31 from extensive questions as it covers the entire topic which we have discussed in today's lecture. So you have to learn it.